Hello dear students. Today in this video, we are going to learn about relative velocity. We had already studied in the previous video that how to use the concept of relative velocity in one-dimensional problem. That is train problem. If the trains are moving in the same direction, then how we can find one's velocity with respect to the other. If they are moving in the opposite direction, we have already seen such kind of problem in the previous video. Today we are going to learn some more about relative velocity. And first I just want to recall few things which are very important. That is, in the previous video we had seen that if suppose I need to find the velocity of A with respect to B. So in vector form, I have to write it as VA minus VB. So what I have to do is I only know the addition of vector. मतलब हमारे पास जो parallelogram law, triangle law है, those laws are applicable only for addition of vectors. So what I am going to do is I am going to write it as VA plus minus of VB. So most important concept is जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी निकालनी है उसकी डायरेक्शन को आप हमेशा क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे. तो हम क्या लिख सकते हैं, the velocity with respect to which it is to be calculated has to be taken in reverse direction whatever the initial direction is given to us. फिर से अगर मैं याद दिलाऊं, suppose there is two trains, suppose this train is T1, the velocity of this one is in this direction and its velocity is suppose 60 kilometer per hour, and the second train is also moving in the same direction and its velocity is v2 is equal to 40 kilometer per hour. Somebody wants to know that what is the speed of the train 1 with respect to train 2. So what is will be the formula, va vector minus of v2 vector. So what I have to do is v1 plus minus of v2. So what I have to do is I have to reverse the direction of second train. So this is going to be the direction of reverse train. If I'm taking this direction as positive, that means now this direction I have to take it as negative, because velocity is a vector quantity and it has magnitude as well as direction. If I'm taking 60 kilometer per hour as positive and 40 kilometer per hour after reversing the direction, it is in the opposite side. So I have to take this velocity as negative. So what will be the addition of these two velocities? It will be v12 will be equal to plus of 60 and this direction is reverse, so minus of 40. So it will be 20 किलोमीटर पर आवर. और ऐसा होता भी है. हमने देखा था कि ट्रेन में अगर कोई बंदा बैठा है और उसको कोई बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको वेलोसिटी अलग लगेगी. अगर वो उसी के साथ बैठा है तो वेलोसिटी अलग लगेगी. उसके बगल में अगर किसी बाइक पर अगर ट्रेन चल रही है, उसके बगल में कोई बाइक चल रही है, तो सिंपल सी बात, उस बाइक पर बैठे हुए बंदे को उस पर्सन की वेलोसिटी उन स्टार्टिंग वाले दोनों केसेस से डिफरेंट लगेगी. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जब कभी भी आपको किसी की वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में निकालनी हो, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन जिसके भी रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं. जैसे हम यहाँ पर वी आर फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. सो आपको 2 की डायरेक्शन जो भी आपको दी गई है, मुझे डायरेक्शन क्या दी गई थी, लेफ्ट टू राइट दी गई है, तो मुझे उसको क्या कर देना है बेटा, राइट टू लेफ्ट कर देना है. तो जो भी मुझे डायरेक्शन, अगर मान लो मुझे ये डायरेक्शन कुछ ऐसे दी गई होती कि एक की डायरेक्शन सपोज इधर है और दूसरे की डायरेक्शन इधर है,
सपोज दिस इज V1 एंड दिस इज V2, और मुझे V1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू रिवर्स इट्स डायरेक्शन, देन ओनली आई कैन ऐड दीज टू वेलोसिटीज। अब मुझे इन दोनों के बीच में एंगल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और एंगल आइडेंटिफाई करने के बाद ही मैं इनका रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ, यानी कि V12 की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी रूट अंडर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा। ये आप अपना फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, where theta must be the angle between V1 and the velocity which has been reversed, उन दोनों के बीच का एंगल हमारा थीटा होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि जिसके भी रिस्पेक्ट में बात होगी यू हैव टू रिवर्स इट्स डायरेक्शन। एक बार अगर आपने उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम जो आपने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में डील किया था, बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये तो वन डायमेंशन था जो हम ट्रेन्स की बात कर रहे थे। यहाँ पर अब हमें पर्टिकुलर एंगल भी मिल रहे होंगे। यहाँ पर फिलहाल हमें जो एंगल मिल रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 180 डिग्री के मिल रहे थे। इन दिस केस बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन। अगर हम इसमें अपोजिट डायरेक्शन वाला केस लेते तो ये हमें पता है कि जब दो चीजें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं अपोजिट डायरेक्शन, मान लीजिए बाइक्स ही हैं और वो बाइक्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, हम लोग एक रोड पर चल रहे हैं, एक बंदा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया और हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो उसकी स्पीड हमें बहुत ज्यादा लग रही होती है। तो वो जो ज्यादा वेलोसिटी लगती है वो क्यों लगती है? क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन जो रोड पर बंदा खड़ा है उसको तो वो 80 किलोमीटर पर आवर से ही लगेगा। हमें कितने से लगेगा? चलो आइडेंटिफाई करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक बाइक है वन, B1 नाम दे देता हूँ इसको। इसकी वेलोसिटी है सपोज 40 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी बाइक है जिसकी वेलोसिटी है, ये B2 है और इसकी वेलोसिटी दी हुई है मुझे 80 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल दिया मुझे? फाइंड वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, टू के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालिए। जैसे ही मुझे पता चल गया किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है, मैं क्या काम करूंगा? मैं इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा। ये देखो आई हैव रिवर्स्ड। तो आपको हमेशा क्या बनानी है? जिसके भी रिस्पेक्ट में बात करनी है उसकी हमेशा आपको डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी, तो आपका कंसेप्ट बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 80 किलोमीटर पर आवर इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर ये 80 किलोमीटर पर आवर इसी डायरेक्शन में हो गया तो सिंपल सी बात ये क्या हो जाएगा? देखो ये भी लेफ्ट टू राइट है, ये भी लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट को अगर हम पॉजिटिव माने तो ऑब्वियस सी बात है ये 80 भी ऐड होगा और ये 40 भी ऐड होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, और जब 0 डिग्री होता है तो उस केस में हमें रिजल्टेंट मैक्सिमम मिला करता है, यानी कि आप उसको नॉर्मली ऐड कर सकते हो। अगर दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री मिलता है, मतलब अगर 0 डिग्री एंगल है तो रिजल्टेंट हमेशा a प्लस बी मिलेगा आपको, और अगर 180 डिग्री का एंगल है तो उस केस में आपको रिजल्टेंट a माइनस बी मिला करता है। ये आपको याद रखना है। आपको वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वो फॉर्मूला बिना यूज किए ही आप ये चीज निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उसी फॉर्मूले से ये चीज हमें आइडेंटिफाई हुई है कि जब 0 डिग्री होता है तो हमारा रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, और जब 180 डिग्री का एंगल होगा तो हमारा रिजल्टेंट मिनिमम होगा। तो इन दिस केस the velocity, relative velocity will be 120 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी वेलोसिटी होगी। तो ये हमारे वन डायमेंशन मोशन है, और यहाँ पर हमें यही दो फॉर्मूलों से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसी सर्टेन एंगल्स पर अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, या टू डायमेंशन मोशन होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो आज हम लोगों को उसी तरीके की प्रॉब्लम्स को देखना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, सपोज इसको हम रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। एक नाम दिया गया है बेटा, ये कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नेम नहीं है कि आपको क्वेश्चन कभी भी रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम नाम से मिलेगा। यहाँ पर रेन और अम्ब्रेला की बात की गई है। क्या बोला है देखिएगा, द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद a स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर सेकेंड। A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? तो सिंपल सी बात ये, suppose this is my east direction, so this is going to be my west direction. A woman is riding a bicycle from east to west direction. East to west direction में ये woman चला रही है, तो मैं इसको VW नाम दे देता हूँ। So VW will be 12 meter per second, east to west direction. Rain is falling vertically downwards, और अगर vertically downwards fall कर रही है रेन, तो मैंने रेन बना दी कुछ इस तरीके से। किस तरीके से? मान लीजिए ये हमारी रेन हो गई।
दिस इज रेन फॉलिंग वर्टिकली, इसी तरीके से गिर रही होगी रेन। किस वेलोसिटी से गिर रही है रेन? तो वी आर नाम दे देता हूं मैं इसको, एंड इट इज 35 मीटर पर सेकेंड। what the question is asking, what is the direction in which she should hold her umbrella? तो जिस भी डायरेक्शन में रेन की वेलोसिटी आ रही होगी उसी डायरेक्शन में तो उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। मतलब रेन वुमेन के रिस्पेक्ट में कैसे फॉल कर रही है वो देखना पड़ेगा। आप कई बार जब बाइक से ट्रेवल करते हैं बेटा, बारिश हो रही होती है, तो आपको जो रेन ड्रॉप्स हैं वो आपकी तरफ आती हुई दिखाई देती है, मतलब इंक्लाइंड दिखाई दे रही होती है, लेकिन रेन तो सीधे गिर रही होती है। तब जब वो इंक्लाइंड आपको दिखाई देती हैं तो आप अम्ब्रेला कैसे होल्ड करते हैं? बिल्कुल वर्टिकली नहीं होल्ड करते हैं, यू होल्ड दैट अम्ब्रेला इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एंड ही इज आस्किंग कि आपको वही डायरेक्शन बतानी है कि वो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। और इसी में अगर मैं एक क्वेश्चन ऐड कर दूं कि व्हाट विल बी इट्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन बताइए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। अब देखिएगा क्वेश्चन कितना आसान हो गया। रेन हमारी, अब हम इसको अलग से बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने डायग्राम देख लिया। तो वुमेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, किस वेलोसिटी से? 12 मीटर पर सेकेंड से। दिस इज वुमेन, 12 मीटर पर सेकेंड। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन, सो वी आर, सो इट विल बी 35 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले मुझे क्या पूछा है उसने? वेलोसिटी ऑफ रेन निकालिए विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वुमेन की डायरेक्शन को आप तुरंत क्या कर दीजिए? रिवर्स डायरेक्शन में लेकर जाइए। तो अगर मैं वुमेन की वेलोसिटी को रिवर्स डायरेक्शन में लेकर जाऊंगा तो ऐसी ही डायरेक्शन होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन। एंड इफ दिस विल बी द डायरेक्शन, तो ये मेरे पास माइनस ऑफ वी डब्ल्यू आ गया, और माइनस ऑफ वी डब्ल्यू का मतलब ये 12 मीटर पर सेकेंड मिला आपको। आपको इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, क्योंकि वी आर डब्ल्यू जो होता है वो क्या होता है? वी आर वेक्टर माइनस ऑफ वी डब्ल्यू वेक्टर। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं? हमें तो एडिशन आता है सिर्फ, तो मैंने इसको प्लस ऑफ माइनस वी डब्ल्यू वेक्टर लिख दिया। तो ये जो माइनस वी डब्ल्यू है, तो माइनस वी डब्ल्यू की डायरेक्शन ये है और वी आर की डायरेक्शन ये है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो रेन इसको अपीयर होगी फॉल होती हुई, वो रेन कैसी अपीयर होगी? वो रेन बिल्कुल इस डायरेक्शन में फॉल होती हुई दिखाई देगी। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। ये कैसे निकाल लेंगे अब हम? भैया इन दोनों के बीच में एंगल कितना? इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। सो वी आर गोइंग टू यूज रिजल्टेंट फॉर्मूला। तो वी आर डब्ल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ वी डब्ल्यू का स्क्वायर। या आप माइनस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने तो डायरेक्शन निकाल ली। वी आर वी डब्ल्यू कॉस 90। तो अगर यहाँ पर ये cos 90 है तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। वी आर की वैल्यू कितनी है? वी आर की वैल्यू है 35 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है कितना? 12 का स्क्वायर। और 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो 35 का स्क्वायर इज 1225, यानी कि ये हो गया 1225, एंड दिस इज 144। तो 1225 प्लस 144 will be 1396, रूट 1396 और 69, सॉरी 1369 का अगर आप रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो 1396 का जो रूट आएगा, 1369 का, सॉरी 1369 का जो रूट आएगा दैट इज 37 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास क्या आ गई? ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। जो रेन 35 मीटर पर सेकंड से गिर रही थी वो मुझे कैसी लग रही होगी? 37 मीटर पर सेकंड से गिर रही होगी। अब अम्ब्रेला होल्ड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब जब इस वुमेन को रेन किस डायरेक्शन में गिरती हुई दिख रही है, इस वुमेन को जो रेन दिख रही है गिरती हुई, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गिरती हुई दिखाई दे रही है। किस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है रेन? इसी डायरेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है, इसी डायरेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। तो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा इससे बचने के लिए? इसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। तो मुझे यही डायरेक्शन निकालनी है कि व्हाट इज द डायरेक्शन।
तो अगर मैं डायरेक्शन निकालने की बात करूं तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, टेन बीटा हुआ करता था। और टेन बीटा की अगर हम बात करें तो टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यही फॉर्मूला हम यूज करते थे। तो यहाँ पर हमारे पास सपोज जो ए है वो मैं रेन मान लेता हूँ, और ये हमारा 12 मीटर पर सेकेंड है, दोनों के बीच में एंगल मुझे पता ही है, यानी कि दिस विल बी 12 साइन 90 अपॉन रेन इज विद 35 प्लस 12 cos 90। cos 90 वैल्यू इज 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। तो tan बीटा जो मुझे मिला वो कितना मिल गया, 12 अपॉन 35। तो बीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 12 अपॉन 35 विद किसके साथ, ये एंगल हम ये वाला बीटा माना है ना हमने, क्योंकि ए जो है, जो बेचारा ये अकेला है, उसका साथ कौन देता है, बीटा दिया करता है। ये हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा था बेटा। तो दिस इज tan इनवर्स 12/35 विद द velocity of rain, आंसर। सो दिस विल बी द आंसर, कि जो भी आपकी रेन गिर रही होगी वो 12 अपॉन 35, टेन इनवर्स 12 अपॉन 35 के एंगल पर आपको अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में रेन गिर रही है उसी डायरेक्शन में आप क्या कर रहे होंगे, अम्ब्रेला को उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप होल्ड कर रहे होंगे। तो ये आपने डायरेक्शन भी दिखा दी यहाँ पर अपने डायग्राम में, कि ये दिस इज द डायरेक्शन, ये आपका अम्ब्रेला है, दिस इज योर अम्ब्रेला, और ये आपकी रेन इस डायरेक्शन में गिरती हुई आ रही है। तो दिस इज द मेथड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पता चली, कि जिसके भी रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे आप उसके डायरेक्शन को बस अपोजिट कर देंगे। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर लैंग्वेज का भी बहुत खास ध्यान रखना है। टू अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड, ये भी रेन अम्ब्रेला की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो या फिर इसको पर्सन रेन पर्सन प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। तो टू अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक बंदा मूव कर रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन विद व्हिच द पर्सन इज मूविंग, दैट इज 4.8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्या बोल दिया, रेन अपियर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। किसको, पर्सन को अपियर हो रही है, मतलब पर्सन को जो रेन दिख रही है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरती हुई दिखाई दे रही है। किसको, पर्सन को। तो ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी मस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो अगर ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन है, उसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 6.4 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपसे अब पूछ लिया है एक्चुअल स्पीड और डायरेक्शन निकालिए। तो देखो, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन लिखने की कोशिश करूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। मुझसे क्या पूछी है, एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन पूछी है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी आर पी प्लस वीपी। डू यू थिंक नाउ आई नीड टू चेंज एनीबडीज साइन, किसी भी वेलोसिटी का साइन को चेंज करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैसा साइन है, प्लस का ही साइन है, और एडिशन हमें करना आता है बहुत अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अगर मैं सीधा सीधा एडिशन कर दूंगा इन दोनों वेलोसिटीज का अकॉर्डिंग टू अपने वेक्टर लॉ के हिसाब से, तो वही मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा। तो इस केस में मुझे डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो दिस विल बी वी आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर पी स्क्वायर प्लस वीपी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहां पर एक्चुअल वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो दिस इज वी आर पी वीपी कॉस 90, एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ये टर्म हो गई आपकी 0। तो यानी कि अंडर रूट ऑफ यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है, ये आई है 6.4 किलोमीटर पर आवर, और ये वैल्यू है आपकी 4.8 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। मतलब इन दोनों टर्म्स को अब आपको सॉल्व कर लेना है, और इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको चीजें कुछ ऐसी मिल रही होंगी, 40.96 प्लस 48 इंटू 48 कितना हो जाएगा, 48 इंटू 48 विल बी, अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो दिस विल बी 23.04 आएगा। और 23.04 में हम कितना ऐड कर दें, हमने ऐड कर दिया 40.96 ऐड कर दिया, और इसी का मुझे क्या चाहिए, रूट चाहिए, 40.96 का ही मुझे रूट चाहिए। यानी कि ये जो आएगा आपके पास, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो
एक बार चेक करते हैं कि इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा। तो 64 आएगा। इन दोनों को देखो आप ऐड किया तो रूट 64, और रूट 64 का मतलब क्या हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन कितनी हो गई, दिस इज एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन। और अब आपको शायद कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कब आपको डायरेक्शन बदलनी है कब नहीं बदलनी है। तो सबसे पहले तो आप ये वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, और वेक्टर फॉर्म लिखने के बाद देखेंगे कि कौन सी चीज दी गई है। तो यहाँ पर देखो टू अ पर्सन वर्ड यूज हो गया कि इस बंदे को रेन कैसी गिरती हुई दिख रही है 6.4। तो जिसको किसी दूसरे बंदे जो चल रहा है उसको अपियर हो रही है, यानी कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। और वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर निकालने की कोशिश की। अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात करी जा रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो आया, यानी कि इन दोनों का अगर रिजल्टेंट आया तो जो भी हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल रेन जो गिर रही होगी वो इसी साइड में गिर रही होगी, और किस स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर से। तो सपोज ये एंगल मेरा बीटा है, तो यहाँ पर आप क्या यूज कर लें, tan बीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू b sin थीटा। मतलब ये हमारी वेलोसिटी ऑफ पर्सन है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो बेटा, बीटा एंगल हमने ये माना है, सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ पर्सन sin 90 upon velocity of rain with respect to person plus velocity of person cos 90। cos 90 वाली टर्म 0 हो जाएगी, sin 90 1 होता है, यानी कि दिस विल बी vp अपॉन vrp। सो vp की वैल्यू कितनी है 4.8 और vrp की वैल्यू कितनी है 6.4। सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 आएगा, यानी कि बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई tan इनवर्स 3/4 विद इसके साथ है ये एंगल VRP। आंसर, ये डायरेक्शन आ गई। तो सिंपल सी बात, अगर बीच में नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव साइन को ओवरकम करने के लिए आपको, उसको एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या लग गई, इसमें तो एडिशन ही आ रहा है क्योंकि VRP ऑलरेडी मुझे गिवन है। अगर मुझे VRP निकालने को बोलता तो पर्सन की वेलोसिटी को मुझे क्या करना पड़ता, अपोजिट डायरेक्शन में अपीयर कराना होता। थोड़ा और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रेन का प्रॉब्लम है। एक ट्रेन है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। तो सिंपल सी बात, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर डायरेक्शन ही बना लेता हूँ। सो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। सो ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही चलेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर। कार इज मूविंग, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार एज अपीयर्स टू पैसेंजर। मतलब हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू पर्सन निकालनी है। तो ये थी हमारी पैसेंजर इन दी ट्रेन, यानी कि ये मेरी पैसेंजर की वेलोसिटी हो गई, क्योंकि ट्रेन जिस स्पीड से मूव कर रही होगी उसी स्पीड से पैसेंजर मूव कर रहा होगा, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार। तो VCP को मैं क्या लिख पाऊंगा, आई कैन राइट इट एज VC माइनस ऑफ VP। तो मुझे सिंपल सी बात, नेगेटिव साइन है तो मेरे दिमाग में सीधे क्या आया, मेरे दिमाग में सीधे आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि मुझे VP की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेना है बेटा। तो अगर मैं VP की डायरेक्शन को नेगेटिव लेने की यहाँ पर कोशिश करूंगा तो यही डायरेक्शन बनेगी, दिस विल बी द डायरेक्शन। और जब मैंने इसकी डायरेक्शन को अपोजिट ले लिया तो यहाँ पर VP की जो वैल्यू आएगी दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। यही वैल्यू देखने को मिलेगी मुझे। तो अब देखिए आप, VP और VC दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री है तो सिंपल सी बात, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना है हमें, VCP निकालना है। CP विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VC स्क्वायर माइनस VP स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ VC VP कॉस, एंगल दोनों में कितना है 90 डिग्री है, तो ये टर्म हो गई आपकी 0। अंडर रूट ऑफ VC कितना है 40 का स्क्वायर, और ये कितना है 30 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 50 का स्क्वायर, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। वेरी इजी क्वेश्चन। So these are the questions related with rain umbrella problem and all such kind of problems which we have to deal. Rest we will see in the next video. Thank you so much for today. God bless you all.